Welcome back to my channel. Don't forget to like, share, comment and subscribe the Hello video. everybody, welcome back to my channel and I think title से देख के आपको समझ गया होगा that this is a review video of an amazing movie directed by Vivek Agnihotri and I hope I am Vivek Ranjan Agnihotri. I absolutely love the director but जब मुझे पता चला that this movie is really controversial and it was not released in West Bengal, Kolkata, which was very मतलब it is not correct, it is not justified. People have said because my roots are from Kolkata, so my cousins and everybody is saying that due to political pressure it cannot be released in the theater. I really don't agree to that. However, coming back to the review of the movie is just amazing. मतलब एक्चुअली में पार्टीशन से पहले क्या हुआ था कोलकाता में. बाय द वे अ लिटिल ब्रीफ. कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर इट शिफ्टेड टू दिल्ली. तो कैपिटल होने के साथ साथ वॉट एवर राइट्स इट टुक प्लेस, बहुत सारे राइट्स हुए हैं. नावखाली एक राइट था. I mean, Naukali is now part of Bangladesh. There were other riots between Hindu, Muslim. The Britishers have actually divided India into Hindus and Muslim to just play divide and rule. There is nothing in the movie जो आपको provoke करेगा अगेंस्ट एनी रिलीजन. टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सिंपल मूवी है. जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, वही दिखाया गया है. देयर आर लॉट ऑफ ट्रू फैक्ट्स जहाँ पे द एंटायर मुद्दा ऑफ पार्टीशन वॉज नॉट हिंदू एंड मुस्लिम. इट वॉज अ डिवाइड एंड रूल प्लेड बाय लॉट ऑफ पीपल. There were darker sides of Gandhi. I mean, to be very honest, if you are a biggest fan of Gandhi ji, I know where mean to defend, or I know where mean to demoralize you or hate you or anything. Personally, whatever was non-violence, I mean, how the non-violence actually provoked a lot of women to do suicide, lot of women to go through rape, to go through a lot of molestation. एंड जो साइड दिखाया गया है जहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि अगर कोई और आप, if any other man touches you against your dignity, you should have that courage to take your life. Indirectly suicide. जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव गांधी जी का था नॉन वायलेंस की तरफ, वो बताया गया है. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु अग्री, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट अग्री. जो कास्ट था मूवी का, इट इज जस्ट अमेजिंग. आई मीन, सबका जो रोल था, स्पेशली पल्लवी जोशी मैम, उनका जो रोल था इज जस्ट अमेजिंग. मतलब मैंने पल्लवी जोशी मैम को DD1, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ किड ऑफ 90s, DD1 से मैंने उन्हें फॉलो किया है. एंड वो महाराष्ट्रियन सीरियल करती थी, मराठी. एंड आई एम रेज्ड इन नागपुर. तो मेरी मम्मी देखती थी मराठी सीरियल्स, एंड उनका एक्टिंग, उनका डांस, उनका voice, I was very impressive. उनकी acting में I was very impressive. But this movie, she have nailed it. I mean, even she showed a lot of grievance. This movie not being released in Kolkata or West Bengal because people have actually suffered a lot. This generation, Gen Zs, or probably the coming generation Alpha, should know that इंडिपेंडेंस के पीछे कितने लोगों ने सैक्रिफाइस दिया है. एंड द सैक्रिफाइस वाज नॉट देयर लाइफ. The sacrifice was also their dignity, their self-respect, their, I mean, I will not explain, I will not give all of the spoilers, but I would also say जब बात डिग्निटी की आती है, I'll give a small example. There was a character जहाँ पे उनका नाम, I mean, she was Hindu, उनका नाम आयशा जहां, being a Hindu, मुस्लिम नाम उनके हाथों में टैटू किया गया. So the sacrifice was not only their life but their dignity, self-respect, everything. तो आई थिंक दिस जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशन शुड नो कि फ्रीडम फाइटर्स ने जो द सैक्रिफाइसेस, देयर वाज river of blood that was flowing in West Bengal during many riots. I'm just telling about 1-2 riots. Now Khali and go back, I mean Simon go back, CBI के खिलाफ भी बहुत कुछ था. There are a lot of things जहाँ पे कितनों की जाने गई है. People have survived. There was also a riot जहाँ पे इवन द बॉडीज वर नॉट क्रिमिनेटेड. उनको जलाने के लिए पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, बिकॉज आधे लोग तो मर गए थे, जो जलाने वाले थे वो मर गए हैं. दे वर डाइड, आई मीन दे क्या तो बोलूँ, दे जस्ट गॉट बरिड, बर्न्ड. तो देर it showed the darker side of how we got freedom, what was the role of our political leaders sitting in Delhi, and how actually we, the people, actually the entire mudda of the entire movie is justice, the freedom to live, the freedom to the democracy, and
above everything, we the people. I mean, we the people, if we as a Hindu, does not matter आप सिख हो, आप यूपी के हो, आप कहीं के भी क्यों ना हो. आपने एक चीज़, आई विल से बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म, कि अगर आप मुस्लिम भी हैं तो आपने कभी मुस्लिमों को देखा है कि इफ़ मुस्लिम फ्रॉम यूपी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम ऑफ हैदराबाद? नहीं. मुस्लिम्स इन ऑल हैड एन यूनिटी. सिमिलरली ये बताया गया है कि among Hindus, अगर आप सिख हो, among Hindus I know Sikh does not come, but again सिख है, क्रिश्चियंस है, ईसाई है, आप सॉरी ईसाई बोल रही हो, सिख हो या फिर आप यादव हो या आप यूपी के हो, कहीं के भी हिंदूज हो, इट हैज़ टू बी वन. अगर आप इंडिया के हिंदू मुस्लिम्स हो, दैट इज वी द पीपल. अगर आप यूनिटी नहीं है, आई मीन दैट वॉज द फ्लॉ. देयर वॉज डिवाइड एंड रूल बीइंग प्लेड एंड आउट ऑफ पिक्चर दिखाया गया था. हिंदू और मुस्लिम की वजह से पार्टीशन हुआ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर वर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिनको दिखाया गया. इट वॉज वेरी ब्लंट मूवी. इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी हिंदूज, इट वॉज नॉट एट ऑल अगेंस्ट एनी मुस्लिम्स. नहीं, इट वॉज नॉट. इवन द पीपल हु आर डूइंग इट वो प्रोवोकेटेड. एंड इंडिया, ये बात इंडिया की है. अगर ये मूवी को बैन करना चाहिए तो वो पाकिस्तान में बैन करना चाहिए. द मूवी शुड नॉट बी बैन इन इंडिया. और इंडिया में वेस्ट बंगाल आता है. सो दिस इज समथिंग दैट आई एज एन इन्फ्लुएंसर आई हैव नेवर कम ऑन कैमरा एंड हैव said that this is wrong. But yes, this movie being not released in West Bengal is wrong because यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है. जो हुआ है वो दिखाया गया है. And the Muslims who have done that are from India or not from India. How they were provocated, everybody should know. I think हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, I think Indians are we the India. This is something that we India still forget. You know, I stay in Hyderabad. I will tell you my story. I stay in Hyderabad. We even this गणेश चतुर्थी, ऐसे कितने शॉप्स हैं जहाँ पे मुस्लिम भैया लोग मूर्तियाँ बेच रहे हैं. दैट इज नॉट बिजनेस, दैट्स आउट ऑफ लव. ऐसे कितने विसर्जन हैं जहाँ पे मुस्लिम भैया लोग हेल्प कर रहे हैं विसर्जन के लिए. नॉट बिकॉज दे गेट मनी, दे डोंट गेट मनी. हैदराबाद में आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं, आई थिंक वे बैक इन 2018 देर वॉज अ रेप केस, जिसके बाद हैदराबाद वॉज इन फुल शॉक. एंड आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई होम टाउन नागपुर. और जो ऑटो वाले भैया थे मुस्लिम थे. आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि मैं उनके ऑटो में बैठूं कि नहीं. पता है वो भैया ने क्या बोला? मैं आपको पहुंचा दूंगा. एंड देर वॉज नथिंग दैट आई डाउटेड बिकॉज हम हैदराबाद में रहते हैं. हमारे हैदराबाद में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव माई कलीग इन ऑफिस इज अ मुस्लिम. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन मुस्लिम जिनके घर हम ईद में जाके सेवई खाते हैं. और जब ईद हो जाता है हम उनसे हलीम मंगवाते, घर का हलीम लेकर आओ. आई डोंट थिंक कि इट्स अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम. सो प्लीज़, अगर आपको लगता है, इफ़ यू गाइज आर ऑफेंडेड कि ये मूवी बीइंग अ मुस्लिम आपको नहीं देखनी चाहिए, आपको भी देखनी चाहिए. बिकॉज यू शुड हैव एन आंसर कि क्यों आप लोगों ने गलत, मतलब जो आप लोगों ने नहीं, मतलब मुस्लिम्स ने क्यों अटैक किया था, हु वॉज द रूट कॉज, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो इट इज़ नॉट अबाउट एनी रिलीजन, इट्स अबाउट ब्रिटिशर्स हु हैव डिवाइड एंड रूल अस. इट इज़ अबाउट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने बहुत गलत ब्रेन वॉश किया है. आई विल नॉट टेक द नेम, बट उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, जिसके वजह से देयर आर लॉट ऑफ वुमेन, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द मूवी हैव सफर्ड अ लॉट. तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये मूवी को किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में बैन करना चाहिए. अगर आपको सही में बैन करना है, आप पाकिस्तान में बैन करिए, बट इंडिया में दिस मूवी शुड नॉट बी बैन. इट should be accessible to everywhere. Or by the way, I don't know whoever from Kolkata, West Bengal is listening to this. I really don't care. बट अगर आप इसे मूवी थिएटर्स में अगर आप इसे रोक रहे हो, तो दिस मूवी इज गोना कम इन ZEE5. आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म में नो पॉलिटिकल रीडर्स कैन स्टॉप द मूवी टू रिलीज. तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि अगर आप थिएटर में जाके इस मूवी को रोक रहे हो, तो OTT प्लेटफॉर्म में ये मूवी एनीवे आने वाला है, विच इज ZEE5. सो इन कोलकाता देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर सेइंग कि अरे बताना जरा कौन से बॉक्स ऑफ, मतलब कौन से थिएटर में कोलकाता में रिलीज होने वाला है. अगर नहीं हो रहा है रिलीज, दैट्स फाइन, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस as a review part कि this is not against any Muslim, this is not against any political party. It is just the past of Indian history which was buried in a wrong way, which came in a very transparent way, जहाँ पे I think pictures, documents of the real things were published in public. That's it. It is not against Muslim as well. The movie is not against Muslims. So I think the movie is coming in ZEE5, but yes, definitely it is 18+ movie क्योंकि बहुत सारे अडल्ट सीन्स है. अडल्ट सीन्स मतलब इट्स अ वायलेंस.
काटने का है, देयर इज लॉट ऑफ ब्लड, देयर इज अ रिवर ऑफ ब्लड, देयर आर लॉट ऑफ बॉडीज जिनको बहुत बुरी कंडीशन में दिखाया गया है. सो दिस इज 18+ मूवी. अगर आप बाय एनी चांस बच्चों के साथ जाते हो, प्लीज डू नॉट, आई डोंट थिंक इन द थिएटर दे विल इवन बी अलाउड टू मूव इन, बट अगर आप बच्चों के साथ जाते हो प्लीज ये मूवी मत देखना. It is definitely a rated movie, but it is one of the movie that deserves an award, and I think it will get an award. So yes, it's just a request to any political person who is watching. I don't know whether being a small influencer this video will reach to them, but any political leader who is watching this video, जिन्होंने द बंगाल फाइल्स को कोलकाता में बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आप लोग थिएटर में नहीं ला रहे हो. इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी मुस्लिम, इट इज़ नॉट अगेंस्ट हिंदूज, कुछ भी नहीं है. जो है वो है, दिखाया गया है. एंड इवन पीपल हैव डन रॉन्ग, दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रोवोकेशन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, ब्रिटिशर्स, आर पोलिटिकल लीडर्स. एंड हाँ, आई रियली लव द मूवी. जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिखाया गया है, जिस तरह से द मेन एक्टर ऑफ द मूवी हैव एक्चुअली एक्टेड. अगर आप फेसबुक में हैं, डेफिनेटली वॉच दैट क्लिपिंग. इट्स अ ब्यूटिफुल क्लिपिंग. इट्स एन आई ओपनर. मिठुन दा हैं, बहुत रिस्पेक्टेड एक्टर्स हैं, अनुपम खेर जी हैं. सो आई थिंक द मूवी इज जस्ट स्पेक्टेकुलर. मतलब मैं कह सकती हूँ ओवर द पास्ट 5 years, अपार्ट फ्रॉम कश्मीर फाइल्स, केरला डायरीज, ये दो मूवीज के अलावा, ओके, थप्पड़ इज वन ऑफ द मूवी, देन मिसेस अय्यर. इट इज वन ऑफ द मूवी जो आप सालों साल याद रखोगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मूवी which will leave an impact even after watching the movie. After watching the movie, you will not be in a good mental state, because somewhere we are so much busy in our life that we forget the sacrifices done by our leaders, and it's just very disheartening कि हम भूल जाते हैं कि क्या क्या sacrifices, किस level पे sacrifices दी गई हैं. And जब being in India, people don't watch the movie, people are being told not to watch the movie. This is very disheartening. I mean, as an Indian, this is very disheartening. So अगर कहीं पे भी आपको access मिलता है, go to the theaters, watch the movie. It is very amazing. Please go ahead and watch the movie. This is not a promotional video. I do not promote for the movie, but I really gave a honest review जहाँ पे it is an eye opener for everybody that in a constitution there is a clause called we the people, and once we understand that clause, there is no discrimination against Hindus. At least in Hyderabad, I have never faced it. My husband loves mandi biryani. I don't feel any differentiation being in Hindi. In Hyderabad, which is also called the city of Nawabs, I think यहाँ पे भी Muslims, because it is a city of Nawab, it is not a city of क्या कहते हैं, शिवाजी और any Indian Marathas या फिर any Indian ancestors. So I think this movie really deserve a amazing, I mean, I don't know, Oscar तो definitely मिलना चाहिए. Go ahead and watch the movie, and yeah, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.